एक शुरुआती हार के बाद माय एमिरेट्स के धुरंधरों ने अपना जलवा दिखाया। लगातार 2 जीत हासिल की डीपी वर्ल्ड ILT20 में। कप्तान निकोलस पुरन की लाजवाब पारी में था वेस्ट इंडीज का जायका। There you go, another boundary. Brings up the 50 for captain Nicholas Pooran. और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड ने छक्कों की झड़ी लगा दी डिफेंडिंग चैंपियंस गल्फ जायंट्स के खिलाफ। ट्रेंट बोल्ट ने आबू धाबी नाइट राइडर्स को तारे दिखा दिए और ले गए अपनी टीम को टेबल के शिखर तक। That's straight up. There should be another. And Trent Boult is too smart. आज उनका सामना होगा खतरनाक जॉनसन चार्ल्स से और एक आत्मविश्वास से भरी शारजाह वॉरियर्स की टीम से, जिसने दुबई कैपिटल्स को सोमवार को दी थी मात। शारजाह में दर्शक हैं तैयार अपनी होम टीम के संग एक शानदार शुक्रवार के लिए। आज खास दिन है और साथ ही साथ मैच भी खास है, तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है रिधमा पाठक और आप देख रहे हैं क्रिकेट सफारी और ये है मैच नंबर 9 डीपी वर्ल्ड ILT20 का, जहां टेबल टॉपर्स माय एमिरेट्स भिड़ेंगे शारजाह वॉरियर्स से और एक खतरनाक कंपटीशन होगा बिटवीन ट्रेंट बोल्ट और जॉनसन चार्ल्स, बिकॉज जॉनसन चार्ल्स जो है वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर है, दूसरी तरफ है हाईएस्ट विकेट टेकर। दोनों तैयार हैं टॉस के लिए। चलते हैं सीधा एलन विल्किंस के साथ टॉस के लिए। All set here in the middle with our match referee Simon Taufel, who's given the coin to Tom Kohler-Cadmore, captain of the Sharjah Warriors. He's going to toss, and it's going to be Nicky Pooran, captain of My Emirates, who's going to call. So, Tom, if you give it a spin. Heads. Heads is the call. It's a tile. Sharjah have one. We're going to bowl first, please. Right, come on in here. So you're going to bowl first, and I'm sure Nicky heard that as well. Why have you made that call, Tom? I think just the statistics kind of over in UAE especially is bowling first is kind of gives you a little bit of an advantage. Obviously you get to then see a bit of the conditions and kind of the dew normally comes in second half, so hopefully that kind of benefits the batters as well. Yeah, and what do you think of this pitch? There's more grass on this than I've seen for a long time. Yeah, it's the most grass I've ever seen here, so obviously then it's going to be nice to be able to react with the ball on it, hopefully get first use out of it as well, so hopefully we'll be able to take some early wickets. Yeah, you lost your first game here. You came back and beat Dubai Capitals. How are you going? You've only had 2 games, but you're still finding your feet? Yeah, obviously early in the tournament it's kind of trying to find your feet and find the balance of the team. So yeah, we're still trying to do that at the minute, but we've had a good week this week leading into this game, so hopefully we can kind of continue and get a bit of extra momentum like we did last game. And on the back of that win, have you made any changes or kept the same playing 11? Yes, we have. Case Ahmed goes out for Joe Denley. All right, lovely. Thanks very much indeed. Enjoy the evening, Tom. Thanks very much. So, yeah, you're going to have a knock, Nicky. How do you feel about that, batting first? Yeah, we're prepared. We spoke about the toss. Obviously, it's really important here in UAE. But in saying that, regardless if you have to bat or bowl first, we need to be ready. Yeah, absolutely. You lost your first game. You won the next 2, the last one convincingly. If you're going through the gearbox, are you in overdrive yet, or have you got somewhere to go? Yeah, we have a long way to go yet, still. We have really good conversations after the first game, and the team is really responding towards, working it out and figuring it out. So far, we've been decent in the last 2 games, and we're hoping that we can continue that trend. Yeah, Trent Boult's been bowling beautifully for you, Akil Hussain as well, and you've been getting runs. How much confidence as captain does that give you to score runs from the top? Yeah, I mean, obviously as a captain, you try your best to lead from the front. It's really important that our senior players, they put their hands up and they step up as well, and that's what we have been doing so far. We believe as leaders on the team, once we can do our jobs, the others follows, and we're hoping for other guys to put their hands up when it's needed as well. Same team? Same team. Same team, lovely. Thanks very much indeed. Thanks, Nicholas. Thanks very much indeed. So there you go. It's the toss that's been won by Sharjah Warriors. Tom Kohler-Cadmore, the skipper, said they're going to have a bowl first. टॉम कोहलर-कैडमोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और एक चेंज है इनके खेमे में। दूसरी तरफ माय एमिरेट्स ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। आपको बता दें कि माय एमिरेट्स का टूर्नामेंट अभी तक टेबल टॉपर्स हैं और घातक निकला है। पहला मैच हारे जरूर थे, लेकिन दोनों मैचेस जीत के आ रहे हैं।
दूसरी तरफ अगर आप टीकेसी यानी उनके शारजाह वॉरियर्स की बात करें तो फिर एक मैच हारे, उसके बाद एक मैच जीते। जो मैचेस हैं बहुत गजब के। आपको एक बार पॉइंट्स टेबल दिखा दें जल्दी से कि किस तरीके के पॉइंट्स पे और कहाँ खड़ी हैं दोनों की दोनों टीम्स। सबसे ऊपर है माई एमिरेट्स जो कि टेबल टॉपर्स हैं। यहाँ पे 3 मैचेस ये खेल चुके हैं। यहाँ पे पहला मैच हारे थे, दूसरे मैच दोनों जीते थे। उसके बाद जो है 5वें पैदान पे खड़े हैं शारजाह वॉरियर्स, लेकिन उनसे नीचे हैं अबू धाबी नाइट राइडर्स। अबू धाबी नाइट राइडर्स को जो है थोड़ा काम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन शारजाह वॉरियर्स भी चाहेंगे कि पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह थोड़ी सी ऊपर बढ़ाएं। मैच अमेजिंग होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि शो पे क्या क्या है। क्रिकेट सफारी में आज क्या शारजाह वॉरियर्स रोक पाएंगे टेबल टॉपर्स माई एमिरेट्स की जीत के सिलसिले को? एक खास बॉलिंग मास्टर क्लास हिटिंग जोन से, और हम मनाएंगे गणतंत्र दिवस हमारे कमेंटेटर्स के साथ। इस खास दिन के लिए और इस खास मैच के लिए हमारे पास हैं 2 खास गेस्ट। मेरे साथ हैं अंजुम चोपड़ा, साथ ही साथ सबा करीम, मुस्कुराते हुए चेहरे। लेकिन सबसे पहले अंजुम, ये जो रिपब्लिक डे है इसमें कई झांकियां निकली हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और हु बेटर देन यू टू टेल अस मोर अबाउट दिस रिपब्लिक डे? 75वां साल है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि बहुत पहले दिन शुरू हुआ था स्पेशली भारत के अंदर, और स्पेशल झांकी थी जिसमें वुमेन लीड कर रही थी। वुमेन का पूरा जो श्रेय है, जो पूरा भारत के अंदर वुमेन हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं, उन सबको कंट्रीब्यूशन करते हुए भारत वो बहुत बढ़िया झांकी निकली आज देखने को मिला। एंड आई थिंक इन एनी डेज 75 years ऑफ इंडिया एंड द वेरी फैक्ट दैट विमेन एम्पावरमेंट तो एक बड़ा शब्द है। मैं समझती हूँ कि अगर प्रोत्साहन भी मिल रहा है और साथ साथ तारीफें भी मिल रही हैं तो क्या बात है। 2:1 पे खड़े हैं आज हम यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी, 2:1 पे खड़े हैं। लेकिन सब आपके लिए और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए इस गणतंत्र दिवस? सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे सभी लोगों को, और मेरी तरफ से यही दुआ है कि इस तरह से हमारा देश और प्रगति करता रहे। जो भाईचारे के साथ हम लोगों ने इतने साल गुजारे हैं वो भी आगे हमें देखने को मिले। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बहुत ज़्यादा वैलिड है हमारे लिए, उसको हम हमेशा अपहोल्ड करते रहें। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस के लिए। जी, खास दिन है और एक खास मैच भी देखने को मिलेगा, लेकिन हमने बाकी कमेंटेटर से पूछा कि आखिर वो क्या करते थे गणतंत्र दिवस के दिन और क्या है उनका कहना। आइए जानते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 26 जनवरी एक खास दिन। हम सब बचपन से सवेरे उठ के रिपब्लिक डे की परेड देखते थे, अलग अलग वो झांकियां देखते थे। वो जो आनंद है ना, जब वो झांकियां निकलती हैं इंडिया गेट से, वो देखने का जो लुत्फ था, मज़ा बहुत ज़बरदस्त आता था। 26 जनवरी पर जब भी मैं घर होता हूँ तो मैं सारी झांकियाँ देखता हूँ, सारी परेड देखता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। क्योंकि हम उस दिन अपनी कंट्री की वो ग्रेटनेस को याद करते हैं, अपनी कंट्री के वो हीरोज को याद करते हैं और सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। सभी भारतीयों को डीपी वर्ल्ड IL T20 से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से आप सबको। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब भारतवासियों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। है प्रीत यहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मेरे सारे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, सलामत रहें, चढ़ती कला रहो। We are proud Indians and a proud democracy। चलिए इसी के साथ रुख मोड़ते हैं आज के मैच की ओर। आपको आज मिलेगा एक बहुत ही खतरनाक और जो है कॉन्टेस्ट देखने को। एक तरफ है ट्रेंट बोल्ट जो कि पावर प्ले में इस तरीके से विकेट चटका रहे हैं जिसके लिए MI बहुत खुश है। 4 विकेट चटका चुके हैं सिर्फ 30 रन देकर, और सामने होंगे जॉनसन चार्ल्स। मजा आएगा। बढ़िया कॉन्टेस्ट है क्योंकि जॉनसन चार्ल्स अभी तक का लीडिंग रन स्कोरर हैं, 250 उनके नाम ऑलरेडी हैं। और ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरीके से पिछले मैच में बॉलिंग करी थी, आउटस्टैंडिंग स्पेल था। प्लेयर ऑफ द मैच तो मिला ही मिला, लेकिन पिछले सीजन में इनकी शायद 9 विकेटें थी और इस सत्र में अभी तक 7 विकेटें ऑलरेडी ट्रेंट बोल्ट ले चुके हैं। सो विच इज ग्रेट वे टू स्टार्ट फॉर माई एमिरेट्स, क्योंकि लीड जो बॉलर हैं वो ट्रेंट बोल्ट हैं। जब इनके खिलाफ गेंदबाजी करेंगे जॉनसन चार्ल्स के खिलाफ, ऑफ कोर्स वो सेकंड हाफ में करेंगे, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन कहां डोमिनेट करता है और कैसे करता है। और इनको देख के अंजुम ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ पावर है और कुछ भी नहीं है।
अच्छी बात यह है कि शॉट सिलेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी तक जॉनसन चार्ल्स का। नॉर्मली प्रेफर करते हैं सीधा मारना, इतना ज़्यादा पावर है कि अगर आप शॉर्ट बॉल भी डाल दें उसको भी वो वैक कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों तरफ, ऑफ साइड में भी और ऑन साइड में भी। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है शारजा वॉरियर्स के लिए कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ, इतने शानदार फॉर्म में है जॉनसन चार्ल्स। पर आज का मुकाबला जीतने के लिए मुझे लगता है कि और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आना चाहिए शारजा वॉरियर्स को, तभी ये मैच वो जीत सकते हैं। जी, और जीतना भी चाहेंगे बिकॉज जो मोमेंटम मिला है उनको पिछले मैच से, उस मोमेंटम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। चलिए, क्रिकेट सफारी एक ऐसा शो है जहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया सिखाएं उन्हें। जैसे पिछली बार हमने सिखाया था, वकार यूनिस ने सिखाया था कि किस तरीके से यॉर्कर्स डाले, और यहाँ पर हैं एक लेजेंड शोएब अख्तर जो कि आपको बता रहे हैं कि बाउंसर्स कैसे डाला जाए विवेक राजदान के साथ। आइए देखते हैं। इस खेल में कहा जाता है कुछ खिलाड़ियों के लिए कि नाम ही काफ़ी है, उसमें से एक नाम है शोएब अख्तर, और ये वो नाम जिसने अपनी एक पहचान पैदा की है। शोएब का मतलब क्या, वो जो राह दिखाता है, और अख्तर पर्शियन और पश्तो में कहा जाता है स्टार, तो राह दिखाने वाला स्टार, और ये है आज हमारे बीच में। शोएब, आपसे तेज गेंदबाजी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली जो एक सोच हम तक आती है वो है वो विकल्प, वो बाउंसर। किस तरह से आपने उसको अपना एक हथियार बनाया? विवेक, सबसे पहले बाउंसर एक इंट्रोडक्शन होता है बैट्समैन के लिए। हेलो, आई एम अ पावर टू रेकन विद। वो बाउंसर होता है जो पीछे मारा जाता है, जो सर के ऊपर से जाता है। वो बताता है ये कि भाईजान, हे इट्स मी, रिलैक्स, मैं शोएब अख्तर हूँ, कोई दूसरा नहीं हूँ। सो वो डिडक्शन होता है। दूसरा बाउंसर वो होता है जो बैट्समैन को हिट करने के लिए होता है। वो हम थोड़ा लेंथ आगे करते हैं जो सर के ऊपर से ना जाए, और मोस्टली जो विकेटें डेड होती हैं उस पे बाउंसर चढ़ता ज्यादा नहीं, वो आपकी पसली की तरफ ही आता है या मुंह की तरफ ही आता है। अल्टीमेटली यू हैड टू प्ले दैट। द वन लास्ट थिंग जो मैं करता था, जब मेरा एक्शन थक जाता था तो मैं अपना हाथ पीछे ले जाता था। हाँ, करेक्ट। और पीछे से लेके मैं स्लाइडर बाउंसर करता। स्लाइडर जो जैसे पानी में पत्थर नहीं मारते, हाँ। वो फीकरें उड़ के जाती थी ऐसे, करेक्ट। वो मैं मारता था और वो बॉल चढ़ता था मुंह की तरफ, और उससे बैट्समैन क्या करता था, ही हैड टू प्ले दैट शॉट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो वजह होती थी बाउंसर करने की, वो विकेट लेने की होती थी। जो स्ट्राइक कर रहा है उसको पकड़ो। लेकिन ये 3 तरह के बाउंसर होते हैं। और बाउंसर में एक चीज जो और आपसे जानना चाहेंगे कि ओवर के शुरू में आप ज्यादा बाउंसर डालना पसंद करते थे, और दूसरी चीज सीम पोजीशन क्या होती थी? देखिए, पहले तो मैंने कहा था इंट्रोडक्शन होता है कि जी मैं फास्टेस्ट बॉलर हूँ, या मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं एटीट्यूड के साथ आया हूँ, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इंसान बन जाओ। ये होता है एक एटीट्यूड। दूसरा, जो क्रॉस सीम इसलिए पकड़ते हैं हम, अगर विकेट अच्छा है तो सीम पे करेंगे और फॉलो करेंगे बैट्समैन को। अगर वो अच्छा छोड़ रहा है, बॉल छोड़ रहा है अच्छा, तो मैं क्रॉस सीम पकड़ूंगा ताकि बॉल हिले ना, कहीं जाए ना, क्योंकि बॉल डक करते हैं। ये सीम पोजीशन रख के तो मैं एम करूंगा उसकी गर्दन पे या छाती पे, ताकि उसको बॉल लगे। तो क्रॉस सीम इसलिए पकड़ा जाता है। तो चलिए, इससे बढ़िया मास्टर क्लास आपको तेज गेंदबाजी के बारे में, और खास तौर पे ये विकल्प, एक हथियार जो तेज गेंदबाजों का है, इसके बारे में और कहाँ मिल सकती थी? वेल, आशा है कि आपको हमारे मास्टर क्लास पसंद आ रहा है, और वो 3 तरीके के जो बाउंसर्स हैं वो आपको बता रहे थे बॉलिंग लेजेंड शोएब अख्तर। आपके लिए सबा, इन टुडेज क्रिकेट सबसे खतरनाक बाउंसर्स कौन डालते हैं? सबसे पहले इनको खेलना किसी को पसंद नहीं था। मेरा अनुभव हो चुका है एक बार वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे मैच में मोहाली में। अच्छा विकेट था, वहाँ पर मुझे ओपन करना पड़ा था। हम और सौरव गांगुली गए थे ओपन करने के लिए। क्या तेज़ गेंद डाली थी इस फास्ट बॉलर ने। आज के ज़माने में, मॉडर्न एरा में, रोहित शर्मा से आगे और कोई नहीं है। जितने आसानी से, इतना समय रहता है उनके पास, चाहे वो 150 हो, 155 हो या फिर 135 हो, जो भी गति की बॉल हो, छोटी बॉल डाली नहीं का, फिर आपकी नज़र जो है सीधा आप स्टैंड में देखिएगा। तो ये कमाल की बल्लेबाजी रहती है रोहित शर्मा की। सबसे अच्छा पुल शॉट प्लेयर इस समय रोहित शर्मा, और कोई नहीं। जी, रोहित शर्मा जो है खेलते बहुत अच्छा है बाउंसर्स के अगेंस्ट। ओके, आपको दिखाएंगे दोनों खेमे के प्लेइंग 11, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा। वी विल बी बैक सून। वेलकम बैक टू क्रिकेट सफारी। आपको याद दिला दें कि शारजा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चयन किया है, यानी बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे माय एमिरेट्स, और इनके पास है एक से बढ़कर एक धाकड़ बल्लेबाज। आपको दिखेंगे निकोलस पुरन उनके कप्तान, साथ ही साथ टिम डेविड, ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड हार्ड हिटर हैं, अंबती रायडू भी हैं टीम में, आंद्रे फ्लेचर भी हैं, और साथ ही साथ जो लोकल प्लेयर है मोहम्मद वसीम, वो भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। दूसरी तरफ शारजा वॉरियर्स के पास जाएं तो उन्होंने एक चेंज किया है अपने प्लेइंग 11 में, जहां पे जो डेनली आए हैं कैस अहमद की जगह, और पहले जो है शारजा वॉरियर्स गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, यानी तीक्ष्ण आपको जरूर नजर आएंगे। और आपको याद दिला दें कि इसी मैदान में उन्होंने 4 विकेट्स निकाले थे, अभी तक 6 विकेट्स हैं उनके पास। एंड गेस हूज इन द हाउस, वी गॉट शोएब अख्तर। गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
आप बाउंसर्स की बात करते हमने देखा, पेसर्स की बात करें, ट्रेंट बोल्ट जो है दूसरी इनिंग्स में नजर आएंगे, किस तरीके के गेंदबाज लगते हैं आपको ये? जी बहुत अच्छे, बहुत तगड़े और क्यों विकेट लेते हैं। विकेट लेने वाला बॉलर वही बंदा मुझे अच्छा लगता है जो विकेट लेने के लिए जाता है। कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आपने वो फॉर्मेट जीतना है तो विकेट लेके आप जीतेंगे। लेकिन आपको अच्छी न्यूज़ ये है कि विकेट बहुत मजे का है, घास लगा हुआ है, जुड़ा हुआ विकेट, बॉल रुक के नहीं आया। पिछले साल थोड़ी विकेटों में मसला था, लेकिन इस साल विकेटें बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। एंड देयर इज अ बिट ऑफ अ जूस फॉर द फास्ट बॉलर्स, सो मेक श्योर जो मैंने आपको बताया इधर मारना जरूरी है। ओहो, जूस फॉर द फास्ट बॉलर्स यहाँ पे शोएब ने तो हमें बता दिया है, लेकिन जानते हैं कि यहाँ पे बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए है क्या। चलते हैं विवेक राजदान के पास पिच रिपोर्ट के लिए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, और हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं। गणतंत्र दिवस, जी हाँ 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। शारजा के मैदान में है, एक नज़र आज पिच के ऊपर डालते हैं कि किस तरह की पिच तैयार की गई है। अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिच के ऊपर घास की परत जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ ये है कि ये जो घास है ना वो पतली वाली घास नहीं है, ये गुच्छे वाली घास है। तो करीब से अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपको हर जगह ये गुच्छे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब इस पिच की खास बात बाकी पिचों की तुलना से अगर हम करें तो इस पिच की, अब आप खास बात माने या ना माने, बात ये है कि इस पिच के ऊपर सबसे कम उछाल अब तक इस टूर्नामेंट में देखा गया है। चाहे आप दुबई की पिच की बात करें या अबू धाबी की बात करें, उनकी तुलना में शारजा की पिच में उतना उछाल नहीं देखते। तो जहां पिचों पे ज़्यादा उछाल नहीं आता ना, थोड़ी सी तकलीफ रहती है बल्लेबाजी करनी, क्योंकि जब गेंद उछल के ज़्यादा ऊपर आती है तो जब छक्के लगते हैं वो ऊंचे भी जाते हैं और दूर भी जाते हैं। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करना इतना बुरा नहीं है, उसकी वजह यह है कि जब बाद में ड्यू आती है और गेंद गीली हो जाती है और स्किड करती है ना, वो ज़्यादा उछाल के साथ स्किड नहीं करेगी, वो थोड़ी सी नीचे रहेगी। तो ये वो पिच है जहाँ थोड़ा सा असमतल उछाल देखने को मिलेगा, और बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए यहाँ एक अच्छा मौका है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे टीकेसी की सोच थोड़ी अलग थी, उन्होंने पहले गेंदबाजी का चयन किया है। शोएब, आपने कुछ अलग बताया पिच के बारे में, आपको क्या लगा कि इन्होंने यहाँ पे किस पे जोर दिया है? जी, विवेक कह रहे थे कि दूसरे टाइम पे बॉल जिप थ्रू करेगा, तो स्किड थ्रू करेगा, और स्किड थ्रू का मतलब ये है कि वो बॉल आपकी बॉडी को छोड़ेगा नहीं। वी हैड टू प्ले दिस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा यहाँ पे जो भी बाउंसर हुआ है, पीपल हैड टू प्ले दैट। और यहाँ पे वेरिएशन के साथ भी बाउंसर हैं, यहाँ पे बॉल शारजा है, यहाँ पे अगर आप जोर लगा के बॉलिंग करें तो आपको पेस मिलता है। जोर लगाना ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फास्ट बॉलर की। तो भाई मेरे यहाँ पे जूस है, लगाओ जोर, मिलेगा आपको रिस्पॉन्ड। थोड़ा कमर का जोर लगाना पड़ेगा ना। हाँ, मैंने दिखाया भी, अपनी बॉडी दिखाई, मेरे सारा चला हुआ है। फास्ट बॉलिंग इतना आसान काम नहीं है कि यहाँ बेंड करनी पड़ती है बैक। तो कौन जीत रहा है? मुझे लगता है कि माई एमिरेट्स, क्योंकि उनकी टीम ज़्यादा मुझे बैलेंस नज़र आ रही है, ज़्यादा उनकी बल्लेबाजी में ज़्यादा जोश है, एनर्जी है, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग गहराई ज़्यादा है। शोएब आपके लिए? माई एमिरेट्स, दोनों के दोनों हमारे गेस्ट ने बोला माई एमिरेट्स। और देखिए जरा आप गौर फरमाइएगा इनके प्रेडिक्शंस पर, बिकॉज जिसके प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा सही निकलेंगे उन्हें मिलेगा एक रेड बेल्ट। अब देखना ये होगा कि क्या शारजा के वॉरियर्स माई एमिरेट्स के इस मोमेंटम को तोड़ पाएंगे या नहीं। चलते हैं सीधा लाइव एक्शन की ओर फ्रॉम द शारजा क्रिकेट स्टेडियम।